Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to discuss a new topic, that is mathematical library methods. Okay, so this topic is very important topic. In previous video session, we had talked about new operator, and in the second last video, we had discussed about the implicit and explicit type conversions. So if you didn't see that video, please go through it and watch the video. This is the new topic, always asked in board exam. The topic is mathematical library methods. ठीक है, mathematical library methods. ठीक है, mathematical means what बेटा? It is related to maths. Mathematical means related to mathematics. Clear? Library means built in. Built in means already available in Java libraries. ठीक है. Methods means what? Methods means a function, you can say, or you can say a block of code. Method means a block of code which holds some instructions, okay, clear everyone? So a method is a named block of code within a class. It executes a defined set of instructions, and some methods are defined by the user itself. These type of methods are known as user defined methods. But methods defined by the Java system, the developers, are known as library methods. ठीक है, these are also known as built-in methods or library methods. ठीक है, built-in methods we can say, or we can say library methods. Clear है बेटा? So mathematical library methods क्या है? सबसे पहले हमने देखा mathematical means maths related, library means built-in, and methods means the block of code which holds some instructions that executed. ठीक है, one by one. Wherever there is a need to perform any kind of action, we just put that function related to it and it execute all the actions. But if I'm talking about the methods that is defined by the user, that is known as user defined methods. ठीक है, and the library methods are those methods that is defined by the Java developers. जैसे कि main method क्या है बेटा? Already defined है, ये यूजर डिफाइंड मेथड नहीं है. यूजर डिफाइंड मेथड आप कुछ मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक चेक नाम से चेक इवन और ऑड, आपने एक ये मेथड बना दिया ऐसे करके. सो ये कैसा मेथड है बेटा? यूजर डिफाइंड. इफ आई एम राइटिंग मेन, सो मेन मेथड एक तरीके किस टाइप का मेथड है बेटा? ये बिल्ट इन मेथड है. इट इज डिफाइंड बाय द जावा डेवलपर. क्लियर हो गया इतना? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नाउ मैथमेटिकल फंक्शंस. ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. सो दीज आर द बिल्ट इन मेथड्स फॉर performing mathematical, used to perform any mathematical ऑपरेशन. ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या मेथड्स हैं. ठीक है, कौन से बिल्ट इन मेथड्स हैं और किस पैकेज के अंदर आते हैं, किस क्लास के अंदर आते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. यस, क्लियर? ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द पैकेज फर्स्ट. ठीक है, देयर इज अ पैकेज named lang, L-A-N-G, lang. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, lang पैकेज इज अ बाय डिफॉल्ट पैकेज इन जावा.
ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस रिलेटेड टू lang पैकेज। कैसे राइट करते हैं बेटा lang पैकेज को? आप ऐसे राइट करते हैं java डॉट lang राइट करते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस रिलेटेड टू द lang पैकेज, लॉट्स ऑफ क्लासेस आर देयर, ठीक है। This is a package. Inside the package, you know very well there is a class. There is a class of lang package that is math class. Math M capital. M क्या होगा बेटा? ये कैप्स लेटर में आपको मैंने बताया था कि किसी भी क्लास का फर्स्ट लेटर जो होता है, नेम का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है मैथ क्लास, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो पैकेज होता है कौन सा होता है? जावा डॉट lang पैकेज। द बेसिक लैंग्वेज फंक्शन सपोर्टेड बाय जावा आर स्टोर्ड इन जावा डॉट lang पैकेज। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ क्लास एंड इंटरफेसेस that are fundamental to the Java programming language, but normally you have to import the package into your program for accessing any classes defined in them. But java.lang package is imported by default by the Java compiler. By default, ठीक है, Java compiler के थ्रू it is defined. So अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? इस क्लास के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ मैथड्स आर देयर। आपको पता है कल लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, क्लास एक क्या है बेटा? एक टेम्पलेट है। क्लास इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। इस टेम्पलेट के अंदर कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, मैथड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर देयर, मैथड्स आर देयर, आपको पता है सारी चीजें। एंड दीज वेरिएबल एंड मेथड्स आर असेस्ड थ्रू ऑब्जेक्ट। क्लियर? इनको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। कैसे? ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट डॉट मेथड्स। मैंने ये लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, सारी चीजें बताएंगे, अगर नहीं पता तो देख लीजिएगा जाके, ठीक है। सो मैथ्स क्लास में, ठीक है, कौन सी क्लास है बेटा? ये मैथ क्लास है। सो मैथ क्लास के अंदर बहुत सारे मैथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं। कौन कौन से मैथड्स हैं बेटा? जैसे कि एक पावर, ठीक है, दैट इज पावर फॉर फाइंडिंग द पावर, ठीक है। एबीएस, एसक्यूआरटी, सीबीआरटी, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मैक्स, मिन, फ्लोर, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर इनसाइड विच क्लास बेटा? मैथ क्लास। दीज आर द मेथड्स। नाउ दीज मेथड्स कैन बी accessed through object. You have to create an object for this math class for accessing these methods. For accessing these methods. आपको पता है किसी भी क्लास में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल द मेंबर्स that includes methods and variables of math class are defined as a static members. These are defined as a static members. जितने भी methods होते हैं ना बेटा, जितने भी methods हैं या variable हैं, किस क्लास के? मैथ क्लास के। मैथ क्या है? क्लास है। इस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, जो भी मेथड्स हैं वो कैसे होते हैं बेटा? स्टैटिक होते हैं। और आपको पता है अगर कोई भी मेथड या वेरिएबल स्टैटिक है तो उसको इन्वोक करने के लिए या एक्सेस करने के लिए देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। यू कैन डायरेक्टली कॉल बाय दियर, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस बाय दियर क्लास नेम, ठीक है। आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्लास नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप चाहे नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। जितने भी मेंबर्स होते हैं, ऑल द मेंबर्स, यहां मैं राइट कर दे रहा हूं, ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स मींस आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे और मेथड्स आ जाएंगे। मेथड्स मींस फंक्शंस, ठीक है। मेथड्स ऑफ मैथ क्लास, मैथ का एम कैपिटल, मैथ क्लास आर डिफाइंड
एज स्टैटिक मेंबर, ठीक है। और आपको पता है कि स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। द स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। स्टैटिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस थ्रू क्लास नेम डायरेक्टली, क्लास नेम डायरेक्टली, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? ये बेसिक का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट मींस सो दीज आर द मेथड्स दैट वी हैव डिस्कस। आप कैसे एक्सेस करेंगे? मैथ इज अ क्लास, मैथ डॉट पाव फंक्शन, ठीक है। मैथ एम कैपिटल, मैथ डॉट cbrt, math dot sqrt, like this. So this is what is the syntax? Syntax is class name dot method of maths class, methods, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे एक्सेस करेंगे? ये सिंटेक्स है आपका। पहले सिंटेक्स मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड, ठीक है। अब आपको पता है कि ये इस मैथ्स क्लास के जितने भी मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। अब जब स्टैटिक होते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। ये these कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय क्लास नेम, ठीक है। चलिए अब जल्दी से जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी लाइब्रेरी मेथड्स हैं, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग राइट कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, पाव। पाव बेटा, यहाँ पर पाव भाजी वाला पाव नहीं है, ये पाव मतलब है पावर फंक्शन। पाव मीन्स होता है बेटा, पाव मीन्स पावर, ठीक है। इसका सिंटेक्स आप ऐसे राइट करेंगे, पाव एक्स कॉमा वाई। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्स की पावर वाई, ठीक है। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है ऑलवेज, यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर इंटीजर टाइप भी ले सकते हैं और डबल टाइप भी ले सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न वैल्यू होगी ऑलवेज रिटर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट ऑलवेज रिटर्न, जो भी रिटर्न करेगी वैल्यू, जो भी आउटपुट वैल्यू होगी वो ऑलवेज किस में होगी? हमेशा डबल में होगी। किस में होगी बेटा? डबल में, ठीक है। जैसे कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मैथ डॉट पाव 4,2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 4 की पावर 2, दैट इज 16। आंसर क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग यहां पर 16 है, लेकिन ये रिटर्न कैसा करता है बेटा? डबल डेटा टाइप रिटर्न करता है, तो आंसर आएगा बेटा 16.0, ठीक है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर इसी तरीके से घुमाता है। ऑप्शन में आपके 16 भी होगा और 16.0 भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? 16.0, क्योंकि ये रिटर्न करता है डबल डेटा टाइप। क्लियर है? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फंक्शन है SQRT फंक्शन। SQ मीन्स स्क्वायर, RT मीन्स रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। एनी एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। इट ऑलवेज रिटर्न, ये भी क्या करता है बेटा? रिटर्न करता है विच काइंड ऑफ डेटा टाइप? डबल डेटा टाइप। कैसे रिटर्न करता है? डबल डेटा टाइप रिटर्न करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से इसका भी। कैसे राइट करेंगे आप? कैसे राइट करेंगे? मैथ लिखेंगे, मैथ क्लास डॉट SQRT, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया 4। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आपका जो आउटपुट आएगा फाइनल, वो आएगा 2.0 और 2, विच वन इज करेक्ट? इट इज गिविंग डबल डेटा टाइप एज अ रिटर्न टाइप, ठीक है। सो 2.0 नॉट 2, ठीक है।
सपोज दैट एक और नंबर ले लेते हैं, मैथ डॉट sqrt 25.0। अब देखिए मैंने यहां पर फ्लोट टाइप ले लिया, यहां पर ये इंटीजर टाइप था और मैंने यहां पर फ्लोट टाइप ले लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है रिटर्न कैसे करता है डबल डेटा टाइप, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा 5.0। 5 आंसर नहीं होगा, ठीक है, 5.0। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एसक्यूआरटी फंक्शन में अगर आपने यहां पे निगेटिव नंबर दे दिया, -x कर दिया, देन इट विल लुक लाइक दिस। आपको पता है मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट माइनस नंबर का कोई अगर निगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इस सिमिलरली यहां पर आउटपुट जो होगा आपका क्या लिख के आ जाएगा, NaN, नॉट अ नंबर। क्या लिख के आ जाएगा बेटा, नॉट अ नंबर। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पे, मैं एग्जाम्पल यहां पे ले ले रहा हूं, एग्जाम्पल में अगर आपने लिखा बेटा SQRT -4, ठीक है, इसका मतलब आप जावा कंपाइलर से कह रहे हैं कि ये वैल्यू बताइए रूट के अंदर -4, ठीक है, रूट के अंदर -4। सो इट विल रिटर्न give the output NaN, not a number, because we cannot find the square root of a negative number। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज CBRT, CBRT कॉमा x। CB मीन्स क्यूब, RT मीन्स रूट, तो ये हो गया क्यूब और रूट, क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट क्या होता है बेटा, जैसे ये स्क्वायर होता है यहां पर 3 लिखा होता है, ठीक, ये होता है क्यूब रूट। ये कैसा, इसका रिटर्न टाइप कैसा होता है, इसका भी रिटर्न टाइप बेटा क्या होता है बेटा, डबल। ये भी किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करता है, डबल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल CBRT मैंने लिया 8, ठीक है, तो आंसर बेटा क्या आएगा, 2 आएगा या 2.0 आएगा। मैंने आपको बताया अभी रिटर्न टाइप कैसा है, डबल है, तो आंसर आएगा 2.0 नॉट 2। क्लियर हो गया? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CBRT हम पॉजिटिव नंबर का भी निकाल सकते हैं और निगेटिव नंबर का भी हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि CBRT मैंने लिखा CBRT -125, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -5 आएगा या -5.0 या फिर NaN आएगा। सो रिमेंबर दिस इज नॉट अ SQRT फंक्शन, इट इज अ CBRT फंक्शन। क्यूब रूट में माइनस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जावा में। तो ये आंसर होगा -5.0। इट मींस यहां पर एक कंक्लूजन आया। कंक्लूजन क्या है बेटा, CBRT वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव x और CBRT ऑफ निगेटिव x, ठीक है, निगेटिव नंबर, CBRT पॉजिटिव x एंड CBRT निगेटिव x, ये दोनों ही हम निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। बट रिटर्न टाइप क्या होगा, कैसा होगा, डबल टाइप, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन जल्दी से देखते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 3 फंक्शन पढ़े, पावर फंक्शन, SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन, CBRT विच फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सील फंक्शन, CEIL, सील। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट x। ये x हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, ये फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। जब हम लोग मैथड्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आप क्या लिख रहे हैं, x मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। SQRT डन हो गया। सील x में क्या होता है बेटा, इट ऑलवेज रिटर्न्स द क्लोजेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट। क्या रिटर्न करता है बेटा, क्लोजेस्ट integer that is greater than or equal to, आर्ग्यूमेंट लिख लीजिए, यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या है, x है, तो हम x भी लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट,
ठीक है, आर्गुमेंट ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं x, ठीक है। क्लोजेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x मींस सील आप ऐसे याद रखेंगे, सील मतलब होता है यहां पर आप ऐसे याद रखिए सीलिंग फैन, और सीलिंग फैन कहां होता है बेटा, ऊपर होता है, छत पर होता है। तो जो चीज ऊपर है वो चीज क्या होगी, बड़ी होगी भाई, जो ऊपर है ग्रेटर है, ठीक है। उसको याद ऐसे रखेंगे क्योंकि अगर सील फंक्शन के बाद अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है फ्लोर फंक्शन। तो सील और फ्लोर में आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, वहां पर क्या होता है, क्लोजेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट, वो होता है फ्लोर, ठीक है। मैं यहां पर लिख ले रहा हूं फ्लोर एक्स, ये फिफ्थ मेथड है फ्लोर एक्स। ये भी क्लोजेस्ट इंटीजर ही क्या करता है, देता है, लेकिन यहां पर ग्रेटर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या करता है, क्लोजेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू आर्ग्यूमेंट दैट इज x, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं सील x और यहां पर लिख लेते हैं हम फ्लोर x, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सील x अभी मैंने बताया क्लोजेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट यहां पर x है, ठीक है। x की वैल्यू यहां पर, ये x जो है वो डबल भी हो सकती है, यहां पर डबल वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है और एनी काइंड ऑफ फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। चलिए मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, चलिए कोई वैल्यू ले लेते हैं यहां पे, सील 46.6, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया क्लोजेस्ट इंटीजर, इससे क्लोजेस्ट होना चाहिए और जो वैल्यू होनी चाहिए इस नंबर से ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, इससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो ग्रेटर में कितना आएगा वैल्यू बेटा 47। हाँ एक और चीज है, बोथ आर रिटर्न डबल डेटा टाइप, इनका रिटर्न टाइप कैसा होता है, इनका भी डबल होता है, रिटर्न क्या करते हैं, कैसी वैल्यू रिटर्न करते हैं, डबल। तो आंसर क्या होगा 47.0, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सील यहां पर लिखा है सपोज दैट 0.6, सो इससे ग्रेटर कौन सी होगी बेटा, 0.6 के आगे अगर बढ़ेंगे ग्रेटर नंबर पे, क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर 0.6 से बड़ा इंटीजर क्या होगा 0.7 आप कह सकते हैं, लेकिन 0.7 बेटा इंटीजर कहां है, अगर आप कहते हैं 0.7 तो 0.7 इंटीजर कहां है बेटा, इट इज ए फ्लोट नंबर, ठीक है। 0.8 नहीं, 0.9 नहीं है, 1 आंसर करेक्ट है, लेकिन ये रिटर्न कैसा कर रहा है, डबल डेटा टाइप, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाता है 1.0, ठीक है। अब समझ में आया। चलिए निगेटिव नंबर भी हो सकता है यहाँ पे, सील माइनस अगर लिखा होगा 46.6 तब क्या होगा, तब भी इससे ग्रेटर, इसके ग्रेटर, देखिए माइनस में उल्टा चलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 46.0 माइनस के, ठीक है, क्योंकि -46 इज ग्रेटर देन -46.6, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ, ठीक है। तो ये ग्रेटर नंबर क्या हो गया -46, ये इंटीजर हो गया, क्योंकि ये रिटर्न टाइप कैसा है, डबल डेटा टाइप है, इसलिए 0.0 भी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए फ्लोर करते हैं, क्लियर हो गया, आई होप सील फंक्शन आपको क्लियर हो गया। बस याद कैसे रखेंगे, सील मतलब होता है सीलिंग फैन, सीलिंग फैन क्या होता है, ऊपर होता है, और फ्लोर कैसे याद रखेंगे, फ्लोर होता है, फ्लोर मतलब फ्लोर जमीन, जो चीज नीचे होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो ये क्या देता है लेस देन, ये कैसी वैल्यू चेक करता है, लेस देन और इक्वल, फ्लोर मतलब नीचे, ऐसे याद रखिए, फ्लोर मतलब नीचे, सीलिंग मींस ऊपर, और ऊपर कोई चीज होती है तो क्या होती है, वो बड़ी होती है, मतलब तो ग्रेटर, नीचे मतलब लोअर, जब लोअर होता है तो क्या होता है लेस देन, ठीक। तो चलिए कुछ वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोर सेम वैल्यू ले लेते हैं बेटा, फ्लोर मैंने लिखा 46.6, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा 47, मैंने ऑप्शन दे दिया आपको 47, 47.0,
46 और 46.0, ठीक है। आंसर आएगा बेटा 46.0। क्यों? क्योंकि 46.6 से लेस देन इक्वल, 46 से लेस इंटीजर वैल्यू क्या होगी बेटा? 46 ये इंटीजर वैल्यू होगी, लेकिन आपको पता है ये रिटर्न कैसा करता है? डबल डेटा टाइप, इसलिए 0.0 लगा देंगे आगे, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्लोर मैं राइट कर रहा हूं यहां पे -46.6 में ले लेता हूं। अब बताइए आंसर क्या होगा? लेस नंबर है तो यहां पर आ जाएगा -47.0। क्यों? क्योंकि 47 वैल्यू क्या होती है बेटा? बड़ी होती है माइनस में, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है ना। -47 है तो यहां पर छोटी हो जाएगी, सॉरी 46 ये क्या है बेटा? 46 यहां पर क्या है नंबर? वैसे अगर हम माइनस नंबर हटा दें तो 47 बड़ा है, लेकिन माइनस लगा दिए तो 46.6 बड़ा है और ये छोटा है। और फ्लोर वैल्यू क्या करती है? लोअर वैल्यू देती है, मींस लेस देन, तो आंसर आ जाएगा -47.0। चलिए एक निगेटिव नंबर भी ले लेते हैं। फ्लोर मैंने ले लिया -20.89, ठीक है। तो इससे बड़ी क्या वैल्यू होती है? 21, लेकिन ये माइनस में, तो आप क्या लगाएंगे? -21, क्योंकि ये अब क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। अब ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। माइनस में ये वैल्यू, जो छोटी वैल्यू दिखती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। और ये आपका आंसर आ जाएगा -21.0। क्लियर है बेटा? तो ये डिफरेंस है सील फंक्शन और फ्लोर फंक्शन में। जल्दी से नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, राउंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा? हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन पढ़े बेटा? पावर फंक्शन हो गया, सीबीआरटी, एसक्यूआरटी, ठीक है, सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। तो 5 methods we have already discussed. Now the number 6 method is what? That is round. Round, ठीक है, ROUND, round x, ठीक है। x means argument. राउंड मतलब क्या होता है बेटा? राउंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर और लॉन्ग, डिपेंड ऑन द आर्गुमेंट। नियरेस्ट राउंडेड, नियरेस्ट आप ऐसे राइट कर सकते हैं, राउंड फंक्शन राउंडेड नियरेस्ट इंटीजर और लॉन्ग, ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहां पर लिखा है कोई वैल्यू, आपको पता होगा 0.5 है, ठीक है। 0.5 से अगर कम है तो वो सेम नंबर ही रिटर्न कर देगा, सेम नंबर रिटर्न करेगा, सेम नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि, और इससे अगर ज्यादा है तो क्या करेगा? अपकमिंग नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर जो है क्या कर देगा? नेक्स्ट इंटीजर जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं राउंड 46.4, अब ये देखिए 0.4 लिखा हुआ है, 0.4 ये 0.5 से कम है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 46, ठीक है। आ गया? कितना आंसर आया बेटा? 46। और मैंने आपको बताया था इसका रिटर्न टाइप क्या होता है बेटा? क्या होता है रिटर्न टाइप? अगर आपने आर्ग्यूमेंट डबल लिया है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अगर आपका राउंड x जो है ये अगर आपका डबल टाइप है तो ये देगा लॉन्ग रिटर्न करेगा वैल्यू। अगर राउंड x जो है वो फ्लोट टाइप है तो क्या रिटर्न करेगा? INT टाइप, ठीक है। मींस INT देगा या फिर लॉन्ग भी देगा, ये कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं देगा। अगर 46.4 है तो 46 देगा। अगर आपने लिखा राउंड 47.2 तो आंसर आएगा 47, ना कि 47.0। ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अभी प्रीवियस फंक्शंस में हम लोगों ने देखा था वो डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा था, लेकिन राउंड फंक्शन रिटर्न करता है कैसी? या तो इंटीजर या तो लॉन्ग,
और इंटीजर और लॉन्ग में आपको पता है डेसिमल वैल्यू होल्ड नहीं करता है, ठीक है। जल्दी से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राउंड 46.6 कर लेते हैं। अब बताइए क्या आंसर आएगा। नियरेस्ट नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, क्या करता है, नेक्स्ट इंटीजर। तो नेक्स्ट इंटीजर आपका होगा 47, 46.6 है, ये 0.5 से ज्यादा है, ठीक है। एक निगेटिव नंबर और देख लेते हैं, राउंड -0.4। अब बताइए इसकी क्या वैल्यू होगी। 0.4 है, ठीक है। ये क्या है 0.4 बेटा, जल्दी बताइए। 0.4 आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0.5 से क्या है, कम है, ठीक है। सेम नंबर रिटर्न करना चाहिए, सेम नंबर रिटर्न करेगा, बिल्कुल रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर सेम नंबर क्या है बेटा, आप ऐसे समझिए, रेंज ये है, ये लिखा हुआ है 0.5 और यहाँ पर कहीं है 0.4 निगेटिव में। और मैंने बताया था इसके अगर पहले है तो सेम नंबर रिटर्न करेगा, सेम नंबर रिटर्न करेगा, लेकिन कैसा है, इंटीजर और लॉन्ग टाइप। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -0। लेकिन -0 तो कुछ होता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, केवल 0 लिखते हैं। 0 तो केवल एक 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक। एक और अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। राउंड -0.6 मैंने ले लिया। अब आपको पता है 0.6 है, 0.5 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीजर 1 है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा, नियरेस्ट, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है राउंड -46.4, मैंने यहाँ पे लिख दिया राउंड -46.4 लिख दिया। अब आंसर क्या आएगा, अब आएगा -46 ओनली, 46.0 नहीं, 46, ठीक है। क्योंकि रिटर्न कैसे करता है, या तो INT या तो लॉन्ग, ठीक है। और दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर टाइप होते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन जल्दी से पढ़ते हैं। 7th फंक्शन, दैट इज ABS। ABS मीन्स होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शन है ABS, ठीक है। ये सारे फंक्शन वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि अभी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए अभी अवेलेबल है, ठीक है। जो कि आपके कोर्स में सिलेबस में केवल वही फंक्शन मैं डिस्कस करूंगा आज, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, रेंट फंक्शन भी है, रेंट फंक्शन इस बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो math.abs मेथड्स रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में मॉड पढ़ा होगा, ठीक है। मॉड x की वैल्यू होती है x, लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये क्या करता है, +x देता है, ठीक है। माइनस वाली जो वैल्यू होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप जो भी आपने x का रिटर्न, जो भी आपकी x का रिटर्न टाइप होगा, जो भी x का डेटा टाइप होगा वही वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर x INT है तो ये रिटर्न करेगा INT। अगर x डबल है तो ये रिटर्न करेगा डबल। अगर x फ्लोट है तो ये रिटर्न करेगा फ्लोट, ठीक है। मतलब जैसा आर्गुमेंट होगा वैसा ही रिटर्न टाइप होगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या कर देता है, निगेशन कर देता है आर्गुमेंट का। एब्सोल्यूट क्या कर देता है, इसको बोलते हैं निगेशन। ये क्या है बेटा, निगेशन, निगेशन ऑफ निगेटिव वैल्यू, निगेशन ऑफ निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू क्या होती है बेटा, जैसे कि मैंने लिखा -5 और उसका निगेशन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो +5 हो गया, ठीक है। ले लीजिए कोई एग्जाम्पल, जल्दी से मैं ले लेता हूं एक एग्जाम्पल। ABS मैंने लिखा 46 पॉइंट, मैंने फिर से ले लिया 7, 46.7 है, ठीक है। ये कैसा है बेटा, फ्लोट टाइप है, तो रिटर्न भी क्या होगा, फ्लोट टाइप ही होगा। 46.7 कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैंने ले लिया ABS -46.7। अब क्या आ जाएगा बेटा आंसर, अब फिर आंसर क्या आ जाएगा 46.7। ये क्या है, निगेटिव नंबर है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। एब्सोल्यूट का तो यही काम होता है, निगेटिव नंबर को क्या करता है, निगेट कर देता है और पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये भी कैसा था, फ्लोट वैल्यू थी, ये भी फ्लोट वैल्यू थी। अच्छा, अब मैंने राइट किया ABS -4, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4 आएगी या 4.0 आएगी, इसका आंसर आएगा 4। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, इंटीजर टाइप है, तो ये रिटर्न कैसे करेगा, इंटीजर ही टाइप, क्लियर है। चलिए
आई क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दूसरे फंक्शन, दो फंक्शंस और देखते हैं। मैक्स फंक्शन, मैक्स और मिन, मैक्स ए कॉमा बी और मिन फंक्शन ए कॉमा बी। ठीक है, इसके बाद रैंडम और देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करेंगे। मैक्स ए कॉमा बी मतलब यहां पर अगर आपने लिखा INT टाइप और ये भी क्या है INT टाइप, तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न होगा आपका डेटा टाइप कैसा, INT टाइप। अगर आपका आर्ग्यूमेंट ए फ्लोट टाइप है, बी भी फ्लोट टाइप है, तो रिटर्न कैसा करेगा बेटा, फ्लोट टाइप। अगर ये डबल टाइप है, ये भी डबल डेटा टाइप है, तो रिटर्न कैसे करेगा, डबल डेटा टाइप। ठीक है, अगर एक INT है दूसरा फ्लोट है, तो क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट, क्योंकि फ्लोट की प्रेसिडेंस हाई होती है। ठीक है, फ्लोट टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग फ्लोट रिटर्न करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, टाइप कास्टिंग की बात हो जाएगी फिर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैक्स में दो वैल्यू में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसको रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं, मैंने लिखा मैथ डॉट मैक्स, आई एम गोइंग टू राइट 46.6 कॉमा 23.4। अब बताइए क्या वैल्यू आएगी रिटर्न होके वैल्यू आएगी 46.6, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने लिखा मैथ डॉट मैक्स, मैंने लिखा 46 कॉमा 50.5। अब बताइए इसमें कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, 50.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 50.5। ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, मैंने बताया था इंटीजर फ्लोट है तो फ्लोटी टाइप आएगी। ठीक है, टाइप कास्टिंग लग जाएगी यहाँ पे, आंसर आ जाएगा ये। सेम रूल होता है इसमें मिन के लिए। अगर ये INT है, ये भी INT है, तो और रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा फिर, INT ही होगा। अगर ये क्या है लॉन्ग है, तो भी ये भी लॉन्ग है, रिटर्न टाइप लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फ्लोट है या डबल है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा या फिर डबल हो जाएगा। ठीक है, एक केस मैंने एक्स्ट्रा बताया आप लोगों को। ठीक है, वो क्या है, अगर डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट है, अगर ये INT है, ये फ्लोट है, या फिर ये फ्लोट है ये INT है, अगर ये फ्लोट है या ये INT है, इन दोनों केस में क्या आएगा, फ्लोट रिटर्न टाइप। ठीक, एग्जाम्पल यही ले लीजिए, मैथ डॉट मिन, एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं चलिए। ठीक है, -46 कॉमा 45, मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी, माइनस, ऑब्वियसली माइनस वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर -45 होता तो फिर आंसर क्या आ जाता बेटा, जल्दी से बताइए कौन सी वैल्यू होती मिनिमम, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैथ डॉट मिन मैंने लिखा 47.8 और यहां पे लिख दिया 50। अब आंसर बताइए, इसका आंसर होना चाहिए 47.8। ठीक है, चलिए एक लास्ट फंक्शन है 10वें नंबर का, ये और डिस्कस करते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम फंक्शन, रैंडम एक्स। ठीक है, रैंडम एक्स क्या होता है बेटा, रैंडम एक्स मेथड ऑलवेज रिटर्न अ डबल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.0 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन 1। ये क्या करता है, डबल वैल्यू रिटर्न करता है, डबल वैल्यू, डबल टाइप रिटर्न, डबल रिटर्न करता है, डबल वैल्यू, डबल टाइप वैल्यू। वेट अ मिनट, डबल टाइप वैल्यू क्या करता है बेटा, रिटर्न करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। और जो वैल्यू होती है एक्स की, क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन, एक्स की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 और लेस देन होती है 1.0, लेस देन 1.0। ठीक है, ये वैल्यू होती है। जब भी आप ऐसे राइट करेंगे SOP मैथ डॉट रैंडम एक्स, अगर आपको कोई भी रैंडम नंबर चाहिए
ठीक है, आपने x लिख दिया, ठीक है, और x में आपने कोई वैल्यू जो भी है, अगर आप केवल x लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पास कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर x नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया रेंज है इसकी, ठीक है। अगर आप सीधे यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट रेंज आपको ले लेगा यहाँ से 0.0 से लेके 1 तक की, जितने भी बार आप इसको एक्सक्यूट कराएंगे ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या करेगा, एक्सक्यूट करेगा, ठीक है। इट विल वेरी ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर यू एक्सक्यूट योर प्रोग्राम as new random numbers of double data types are generated, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, 0.0 से लेकर लेस देन 1.0 तक, ठीक है। इसका यूज होता है, डाइस वाला क्वेश्चन होता है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डाइस वाले क्वेश्चंस में भी इसका यूज होगा जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टाइम जब आप इसको कॉल करेंगे, सपोज दैट आपने इसको कंपाइल किया, कंपाइल कराने के बाद रन कर दिया, तो रन करने के बाद इसका आंसर आ गया 0.789645 समथिंग लाइक। फिर एक बार और इसको रन कराया, अब इस बार वैल्यू क्या आ रही है, 0.45432986, ठीक है। फिर से इसको कंपाइल कराया दोबारा, फिर कंपाइल करा के रन कराया, अब वैल्यू आ रही है 0.432798 something. So each and every time it is generating a random number between 0.0 to less than 1.0, ठीक है। इसका यूज हम लोग डाइस वाले प्रोग्राम में करेंगे। डाइस में जैसे कि आपको पता है पावर से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब रैंडम आप डाइस आप फेंकते हैं तो रैंडम कोई भी नंबर जनरेट कर जाए टिल अप टू 6 तक, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे फर्दर। तो आज हम लोगों ने सारे फंक्शंस देखे, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे रिलेटेड टू योर एग्जाम्स थे, वो सारे फंक्शन देखे। कौन कौन से फंक्शन देखे हम लोगों ने, पावर फंक्शन देखा, पावर फंक्शन एक्स की पावर वाई, एसक्यूआरटी फंक्शन देखा। एसक्यूआरटी फंक्शन में आपको पता है पॉजिटिव नंबर का एक्सक्यूआरटी फंक्शन निकाल लेते हैं, नेगेटिव नंबर का नैन आता है, नॉट अ नंबर। सीबीआरटी में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर का निकाल सकते हैं, रिटर्न टाइप ऑलवेज डबल आता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कौन सा फंक्शन, सील फंक्शन देखा, फ्लोर फंक्शन देखा। सील फंक्शन में आपको पता है क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल होती है। फ्लोर में क्या होती है, फ्लोर नीचे होता है, नीचे मतलब फ्लोर जमीन, मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने कौन सा फंक्शन देखा, राउंड फंक्शन देखा, राउंड मतलब राउंड ऑफ कर देता है क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू में। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा एबीएस फंक्शन देखा, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव, मैक्स देखा, मिन देखा, 2 वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है या 2 वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मेन फंक्शन। इसके बाद हम लोगों ने देखा रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन है, अगर आप बार बार इसको एक्सक्यूट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा बिटवीन 0 से 1.0 तक, ठीक है। ओके क्लास, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस मी, ठीक है। गुड डे टू ऑल।